بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج سلف کی حقیقت کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی اب تک کی جو باتیں پڑھی ہیں وہ اس سلسلے میں تھیں کہ اللہ کے کلام قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کا، جن کو ہم سلف صالحین کہتے ہیں، پہلے نمبر پر سلف صالحین کہتے ہیں، ان کی سمجھ اور ان کی فہم کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات جو پچھلے درس میں آپ کے سامنے ہوئی ہے، اس میں کچھ مثالیں، 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جس میں یہ بات صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے آئی ہے کہ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جب ہم حدیثوں کو سمجھتے ہیں تو تعارض، ٹکراؤ، اختلاف، مسائل میں الجھن ختم ہو جاتی ہے۔ کئی ایک حدیثیں آپ کے سامنے آئیں اور ان کا معنی سمجھنے میں علماء کا اختلاف سامنے آیا، فقہا کا اختلاف سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد جب سلف صالحین کے منہج کے مطابق، یعنی سلف صالحین کے طریقے کے مطابق ہم لوگوں نے اسے سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی سمجھ کو، ان کے فہم کو سامنے رکھا کہ کیسے سمجھا صحابہ کرام نے، تو الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا اور اختلاف ختم ہو گیا، جیسا کہ اس سے پہلے مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب یہاں پر وہ جو اصل نقطہ تھا، وہ نقطہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد آج جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ صحابہ کرام جن کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں قرآن کی آیات اور ایسے ہی اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں، یہ صحابہ کرام کوئی بات کہیں، ان کا کوئی قول، ان کا کوئی فرمان، ان کا کوئی موقف، کسی مسئلے میں ان کا حلال سمجھنا، کسی چیز کو حرام سمجھنا، کسی مسئلے کے بارے میں ان کا کوئی حکم لگانا، اگر ہمیں ایسی کوئی چیز ملے تو صحابہ کرام کے اقوال یعنی ان کی باتیں کیا حجت ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہم ان کی باتوں سے دلیل پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ ہم ان کی باتوں سے استدلال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کسی بات کو حلال ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام کا قول ہم پیش کریں کہ نہیں پیش کریں؟ حرام ثابت کرنے کے لیے کوئی قول صحابہ کرام کا پیش کریں یا نہ کریں؟ یا ایسے ہی اور بہت سارے مسائل جو اس کے اندر آئیں گے۔ مثال کے طور پر ایک ہی مسئلے میں خود صحابہ کرام کا اختلاف ہو جائے، چند صحابہ کرام کا الگ موقف ہو، دوسرے صحابہ کرام کا الگ موقف ہو، تو ایسی صورت میں ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو چونکہ اس مسئلے کا بہت گہرا تعلق ہے ہمارے مضمون سے، کیونکہ منہج سلف کی حقیقت یہی عنوان ہی ہے ہمارا، جس پر ہم بستہ گرچہ کی موضوع تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ خشک انداز کا ہے، خشک ہم نہیں کہتے کسی بھی موضوع کو، خاص طور پر جس کا تعلق سنت سے ہو، جس کا تعلق عقیدے سے ہو، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق، اس کے رسول کے حق سے ہو، ایسی موضوعات کے بارے میں تو ہرگز یہ لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اس معنی میں کہ حالات اور جو ماحول ہے اس کے اعتبار سے عام طور پر اس طرح کے موضوعات کو عوامی مجلسوں میں کم ہی لایا جاتا ہے، اور اس طرح کی مجلسیں بہت ہی زیادہ محدود ہوتی ہیں، اور لوگ اس طرح کے موضوعات سے اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں اس موضوع سے نفرت ہے، اس لیے کہ اس موضوع سے وہ زیادہ مانوس نہیں ہے۔ جب اس سے دلچسپی ہو جائے، مانوسیت ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھا دلچسپ موضوع کوئی اور نہیں ہو سکتا، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل دین کو سمجھنے کی جو باریکیاں ہیں اس کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ حساس موضوع، اس سے زیادہ دلچسپی کا موضوع، اس سے زیادہ ہماری اور آپ کی چاہت کا، خواہش کا موضوع حقیقت پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدے توحید کا مسئلہ، پھر عقیدے کے سارے ابواب جو ایمانیات کے ابواب ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ سنت کا اور سلف امت کے موقف اور ان کے سٹینڈ کا، یہ سب سے زیادہ اہم اور دلچسپ موضوع ہمارے پاس ہے اور ہونا چاہیے۔ تو آج جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے
सहाबे किराम की के अक़वाल के बारे में क्या उनका मौक़िफ़ है? क्या अल्लामा अलबानी साहब रहमतुल्लाह अलैह सहाबे किराम के अक़वाल को हुज्जत मानते हैं कि नहीं मानते? और ये जो मौजू हमारे सामने है, जो बातें किताब में हैं, ये तो हम पढ़ेंगे ही इंशाअल्लाह। इसके ज़िम्न में बहुत सारी बातें जो हालात के एतबार से, ज़रूफ़ के एतबार से सहाबे किराम को हुज्जत मानने न मानने के सिलसिले में उनके मसाइल या उनके मवाक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाने वाली बहुत सारी बातें हैं, उसका भी तज़किरा होगा। ये बातें भी होंगी कि सहाबे किराम के ख़िलाफ़ ज़बान दराजियाँ करने वाले लोग कैसे कैसे हैं, सहाबे किराम का मकाम कितना ऊंचा है और किन किन लोगों ने सहाबे किराम के ख़िलाफ़ ज़बान दराजियाँ की हैं और उनके एतबार को, उनके हुज्जत को ख़त्म करने की कोशिश की है। ऐसे दूसरा पहलू भी आएगा जो हम पर, यानी हम अहलुल हदीस पर, सलफ़ियों पर ये इल्ज़ाम बहुत सारे लोगों की तरफ से लगाया जाता है कि ये लोग सहाबे किराम को नहीं मानते, है ना, सहाबे किराम के मकाम को, उनकी अज़मत को तस्लीम नहीं करते। और इस हवाले से कुछ मिसालें भी वो पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ तलाक़ सलासा के सिलसिले में जो है वो, और ऐसे ही मिसाल के तौर पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौरे खिलाफत में जो मसला पेश आया था दूसरी अजान का, ये सारे मौज़ूआत जो है ना वो आमतौर पर ज़ेर बहस आते हैं। तरावीह के मसले में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया जाता है। इस तरह से जो मसाइल हैं उसका भी तज़किरा हो सकता है, ज़िम्नन आपके सामने आएगा, ताकि सहाबे किराम, चूँकि मौजू क्या है, सहाबे किराम के आसार से हुज्जत पकड़ना, दलील पकड़ना दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है। सहाबे किराम के आसार आए, यानी सहाबे किराम की कुछ बातें आई, सहाबे किराम का कुछ अमल हमारे सामने, उनके कुछ अक़वाल हैं, उनके कुछ फतवे हैं, उनके कुछ फरमुदात हैं, वो हमारे सामने हैं। क्या हम उनको पेश करें कि नहीं करें? उनको पेश करें, उनको दलील माने कि ना माने, उनसे उनके अक़वाल में जो बातें बतलाई गई हैं उन बातों को हम क्या समझें, मोतबर माने ना मोतबर माने, क्या करें, ये सारी बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएंगी। तो उन्वान हमारे सामने क्या है, और इस मौजू का बहुत गहरा ताल्लुक है पहले वाले से, क्योंकि बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि कुरान और सुन्नत को सहाबे किराम के समझने के मुताबिक समझना। तो सहाबे किराम के समझने में क्या चीज है? आखिर कुछ कहा होगा वो हमारे सामने होगा, कुछ किया होगा वो हमारे सामने होगा, कोई स्टैंड होगा उनका, कोई मसला होगा, कोई फतवा होगा, कोई फैसला होगा, उनके दौरे खिलाफत का मिसाल के तौर पर जो खुलफाए राशिदीन हैं या उनके बाद के जो लोग हैं उनके कुछ फतवे होंगे। तो आखिर इनके आसार से दलील पकड़ना कैसा है, दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है, हम इससे इस्तिदलाल करें या ना करें। तो बहरहाल अब आइए यहां पर हमें एक बात शुरू में ये समझ लेनी है कि देखिए, सहाबे किराम के अक़वाल और आसार को हुज्जत मानने, दलील मानने के सिलसिले में आम तौर पर, यानी जिनको हम जमहूर कहते हैं, जमहूर या जमहूर का माना क्या होता है, यानी अक्सर लोग, ज्यादातर लोग, आम तौर पर लोग जो है ना, आम तौर पर लोग उम्मत के इस बात के कायल हैं कि सहाबे किराम के आसार, आसार समझते हैं ना, आसार का एक माना तो हदीस का भी होता है, क्योंकि हदीसों को भी असर कहा जाता है, लेकिन वो असर कब हदीस माना जाएगा? जब अल्लाह के नबी के हवाले से कहा जाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का असर है। जैसे हम कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मासूर दुआएं, तो उसका माना क्या होता है? वो दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल होकर के आई। लेकिन अगर हम अल्लाह के नबी का हवाला नहीं देंगे, उनका जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ आसार कहेंगे, तो आसार में सबसे पहले सहाबे किराम के आसार, यानी उनकी बातें ये मुराद होंगी। तो अक्सर अहले इल्म के यहाँ, अहले इल्म की बड़ी जमात के यहाँ, जिसको जमहूर हम कहते हैं, उनके यहाँ ये मौक़िफ़ है कि सहाबे किराम की बातें, उनके आसार ये हुज्जत है, दलील है, मोतबर है, उनकी बातों को माना जाएगा। यही नहीं बल्कि बाज़ उलमा ने यहाँ तक कहा है कि सहाबे किराम की बातें बिल्कुल वैसे ही हैं, मानने के एतबार से, मकाम और मर्तबे के एतबार से नहीं, मानने के एतबार से, दलील पकड़ने के एतबार से, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं। यानी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाए, हमारे सामने कोई हदीस आ जाए जिसमें कोई बात बयान की गई हो, तो हम फौरन उसे दलील पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? दलील पकड़ते हैं और उसको हम फौरन साबित करते हैं। तो कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम के अक़वाल और आसार भी हमारे सामने हो, तो उनसे भी हम ऐसे ही दलील पकड़ेंगे जैसे हम अल्लाह के नबी की हदीसों से, सुन्नतों से दलील पकड़ते हैं। जाहिर है कि मकाम तो दोनों का सेम नहीं हो सकता है। कौल रसूल की तरह से किसी गैर रसूल का कौल तो उस दर्जे का नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन हुज्जत के एतबार से, दलील होने के एतबार से तो बड़ी तादाद कहती है मोतबर है, और बाज लोग यहां तक कहते हैं कि उसको
بالکل اس کی حیثیت ویسے ہی ہے بالکل جیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہ بات سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، جس کا تذکرہ، جن کے اقوال کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اچھا، اور بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال سے، ان کی فرمودات سے حجت قائم نہیں ہوگی، یعنی صحابہ کرام کا کوئی قول آیا ہے تو اس سے کوئی بات حلال حرام جائز ناجائز ثابت نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ کوئی قرآن کی آیت ہو، ضروری ہے کہ کوئی اللہ کے نبی کی حدیث ہو تو ہی کوئی چیز سب ثابت کریں گے۔ قرآن کی آیت ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ کے نبی کوئی حدیث نہیں، لیکن صحابہ رسول کا کوئی قول ہے تو ہم اس کی بنیاد پر ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے واجب ہے مکروہ ہے مندوب ہے وغیرہ۔ یہ ایک قول ہے، اور یہ قول بہرحال کچھ بھی ہو جائے تو یہ شاذ قول ہے، اور یہ اہل ظاہریہ یعنی ایک طبقہ بعض ان علماء کا ہے جو ظاہریہ کہلاتے ہیں۔ ظاہریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف دلیلوں کے ظاہر کو دیکھنا، دلیلوں کے ظاہر کو دیکھنا۔ خیر اب اس میں تفصیل میں بھی نہیں جانا ہے کہ ظاہریہ کے کیا کیا موقف ہیں اور کیا کیا ان کے ہاں ہے اور معروف لوگ کون ہیں، ان میں زیادہ ہمیں داخل نہیں ہونا ہے۔ فی الحال ابھی جو بات کرنی ہے وہ یہی کہ صحابہ کرام کے اقوال اور آثار کو حجت پکڑنا کہاں تک سلف کی امت کے یہاں ثابت ہے۔ اب آئیے تو اس کی یہ تو آپ کے سامنے تمہید ہے، اب آئیے براہ راست موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا کہ وہ صحابہ کرام کے آثار کو حجت مانتے ہیں، اور حجت ہی نہیں مانتے بلکہ اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ مانتے ہیں۔ جیسے نبی کی سنت سے چیز ثابت ہوگی ویسے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے آثار سے بھی ثابت ہوگی۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ نے، اور آپ جانتے ہیں نا امام ابو داؤد جن کی کتاب ہے سنن ابو داؤد، امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ، پوچھا یہ گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان صحابہ کرام کا جو فعل ہے یعنی ان کا جو کام ہے، عمل، جو ان کا عمل ہے، ان کے عمل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ اب ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ائمہ کرام کے یہاں، امت کے بڑے بڑے چوٹی کے محدثین اور ائمہ کے یہاں صحابہ کرام کے اقوال، ان کی فرمودات دلیل ہیں یا دلیل نہیں ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے خلفائے اربع کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا جو عمل ہے، جو کچھ انہوں نے کیا، کوئی کام ابو بکر صدیق نے کیا، کوئی کام عمر بن خطاب نے کیا، کوئی کام عثمان نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا مثال کے طور پر، تو کیا یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ یہ پوچھا گیا ان سے۔ قال نعم، تو امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ ہاں، جواب دیا ہاں بالکل، صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں، انہم، ان کے افعال جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ وقال مرتن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ صرف اور صرف سادہ سودہ جواب نہیں دیا کہ ہاں ان کے صحابہ کرام کے اقوال، خلفائے اربعہ کے اقوال حجت ہیں، کئی بار تو جواب دیا کہ ہاں حجت ہے، لیکن ایک بار اس کی دلیل بھی پیش کیا، کیوں حجت ہے؟ کیوں حجت ہے بھائی؟ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی اب کے اقوال فرمودات کیوں حجت ہے؟ کہتے ہیں لحدیث رسول اللہ، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حجت ہے، دلیل ہے صحابہ کا عمل، صحابہ کا فعل، اس کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنت کے بالکل ساتھ میں کس کا ذکر کیا ہے؟ خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے۔ تو اسی حدیث کو پڑھ کر کے امام احمد بن حنبل نے دلیل پیش کی کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان، خلفائے اربعہ کی بات چل رہی ہے، ابھی بقیہ صحابہ کرام کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے، خلفائے اربعہ کا مقام امت میں سب سے زیادہ اونچا ہے، بلکہ ساری دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام ہے ان خلفائے اربعہ کا، تو اس لیے حجت ہے، اس لیے دلیل ان کی بات، کیونکہ اللہ کے نبی نے صاف صاف فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی، اور آپ نے کیا فرمایا؟ علیکم، لازم پکڑو، یہ حکم ہے، یہ کیا ہے؟ امر ہے، حکم ہے، لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کرنا ہی ہے،
آپ کو करना ही है। तो अब जब अल्लाह के नबी कह रहे मेरी सुन्नत को, सेम अंदाज है ना, अलैकुम भी सुन्नती व सुन्नत जोड़ा गया है, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो। जैसे नबी की सुन्नत को लाजिम पकड़ने के लिए कहा गया, वैसे ही साथ में अत्फ के जरिए से, वाव के जरिए से जोड़ा गया, वह सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन मिन बादी, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। तो कहते हैं कि इसमें साफ साफ हुक्म दिया जा रहा है कि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को क्या करना है, लाजिम पकड़ना है। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए, अब आगे देखिए, कहते हैं फिर उनसे आगे पूछा गया उमर इब्न अब्दुल अजीज, अच्छा इमाम साहब ये बताएं, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, आप ये बताइए कि फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो भी जो कुछ कहेंगे, वो भी जो कुछ करेंगे, वो भी दलील होगा या नहीं होगा? अब आप तो जानते हैं ना कि उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सहाबी तो नहीं है, ताबई है। इसमें कोई शक नहीं कि आपका मकाम और आपकी कदर मंजिल और आपके मकाम और मनकबत का क्या कहना, अलग ही शख्सियत है। बल्कि यहां तक इतना ऊंचा मकाम है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का कि बहुत सारे मुअर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को बहैसियत 5वां खलीफा जिक्र किया है, खामिसुल खुलफाए राशिदीन। 4 तो खुलफाए अरबा हैं हमारे पास, इनको क्या कहते हैं, 5वें खलीफा हैं। यानी गोया कि इनका जो अहद था, इनका जो दौर था, इनकी जो खिलाफत का जो जमाना था, बड़ा ही निराला। ऐसे समझो कि खिलाफत राशिदा की याद आ जाए आप। तो बाज़ उलमा ने, बाज़ सीरतनिगारों ने बाकायदा क्या कहा है, कहा कि ये 5वें खलीफा हैं, 4 वो हैं और 5वें ये है। बहरहाल तो ये इस माने में आपके सामने बात जिक्र की जा रही कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का मकाम बड़ा ऊंचा है। उसके बाद कहते हैं, जब पूछा गया इनसे कि उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या उनकी बात भी हुज्जत होगी, जो भी वो कह देंगे उनको हम पेश करेंगे, दलील मानेंगे? काला ला, उन्होंने फरमाया नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम मर्तबा अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह से खुलफाए अरबा की बात चल रही कि उनकी बातें हुज्जत हैं, उस तरह से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का मामला नहीं है। आला, सवाल करने वालों ने फिर आगे पूछा, अलैसा हुआ इमामन, आप कह रहे हैं कि उनकी बात हुज्जत नहीं होगी, तो क्या वो इमाम नहीं है? यानी बहुत बुलंद पाया शख्सियत है, क्या उनका मकाम इमामत का नहीं है? क्या वो बहैसियत इमाम और पेशवा नहीं है उम्मत के? तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यह सवाल हुआ कि क्या वो इमाम नहीं है? तो उन्होंने, इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या जवाब दिया? उन्होंने फरमाया, भला क्यों नहीं, इमाम तो है वो, बिलाशुबा मुसलमानों के इमाम हैं, मुसलमानों के बादशाह हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं। फ़क़ीला लहू, तो फिर उनसे पूछा गया कि जब वो इमाम हैं और आप मानते हैं कि वो इमाम हैं, तो ये बताइए कि क्या हम उनके बारे में वही बात न कहें जो हम उबई, मुआज और इब्न मसूद, सहाबे किराम का नाम लिया, क्या हम उनके बारे में, उनके अक़वाल, उनके आसार के बारे में वही बात ना बोलें जो बातें हम इन सहाबे किराम के बारे में बोलते हैं कि सुन्नत है? यानी इनके बारे में, सहाबे किराम के अक़वाल के बारे में क्या बोलते हैं आप? इनके अक़वाल को सुन्नत कहते हैं, सुन्नत के दर्जे में मानते हैं, तो क्या हम इनके दर्जे में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को नहीं रख सकते? तो इमाम अहमद बिन हंबल ने जवाब दिया, फरमाया मा अदफ़ाहु व नक़ूल, कहते हैं मैं टाल तो नहीं पा रहा हूं कि मैं कहूं, मैं टाल नहीं पा रहा हूं, मैं कह दूं कि नहीं, इसको मैं टाल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं उनमें से किसी की मुखालफत करना पसंद नहीं करता हूं। यानी क्या मतलब? सहाबे किराम की बात तो तय है अपनी जगह पर, रही बात ताबईन की और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की, तो मैं उनकी बात को उस तरह से नहीं समझता हूं जिस तरह से सहाबे किराम और खुलफाए राशिदीन की बातें हैं। खुलफाए राशिदीन के बाद बकिया सहाबे किराम का नाम लिया गया, उबई बिन काब का, मुआज बिन जबल का और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उनके बारे में पूछा कि क्या उसी तरह से उनकी बातें सुन्नत नहीं है? तो उन्होंने फरमाया कि मैं उसी तरह से मानने को टाल नहीं पा रहा हूं, उसी तरह मानने को टाल नहीं पा रहा हूं, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि उनमें से किसी की मुखालफत करूं। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का मकाम इन सहाबे किराम के बाद है, इन सहाबे किराम के बाद है। यानी सहाबे किराम का जो दर्जा है वो दर्जा तो किसी ताबई को नहीं मिल सकता। और ये बिल्कुल उसूली बात है मेरे भाइयों। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम,
सुम्मा ये तरतीब के लिए नहीं आता बल्कि तराखी के लिए आता है। तराखी का माना ग्रामर में ये होता है कि वो साथ साथ लगे के माने में नहीं आता है। जैसे हम वाव बोलते हैं ना, फला और फला, तो इसका मतलब क्या होता है, वो है और उसके पीछे ये भी है। लेकिन जब हम कहते हैं सुम्मा यानी फिर वो है फिर वो है, इसका मतलब ये होता है कि वो बाद वाला जो है वो वाकई बाद में है, देर से है, फासला है दोनों के बीच में। ठीक है। फिर अल्लाह के नबी ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था यलूनहुम, फिर जो लोग उनके बाद उनसे मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा सहाबे किराम के बाद ताबईन का जो पूरा तबका है वो सहाबे किराम से बिल्कुल अलग थलग है और बाद में है सहाबे किराम की, इसलिए ये दूसरा दर्जा है, ये दर्जा दूसरा है। अच्छा, आप कहते हैं, आगे कहते हैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की ये बात हम लोगों ने पढ़ ली है। कहते हैं इसी तरह से उनके बहुत सारे अक़वाल हैं और उन तमाम अक़वाल को जब हम पढ़ेंगे तो उसका खुलासा ये है कि वो सहाबे किराम के आसार को, सहाबे किराम के अक़वाल को, उनकी बातों को हदीस के दर्जे में रखते हैं, हदीस के दर्जे में रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है मरफू आई है। मरफू का मतलब यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अपनी हदीस है, आपने उसी है या आपने उसमें कोई काम किया है, उसमें कोई बात बयान की गई, यानी अल्लाह के नबी की मरफू हदीस में कोई बात बयान की गई है और सहाबी रसूल का कोई असर आ रहा है, उस असर में जो बात बयान की गई है वो बात और अल्लाह के नबी की बात में कुछ टकराव लगता है। बात समझ में आ रही है? दोनों में क्या लग रहा है? टकराव लगता है, कभी तारुज लगता है, तारुज लगता है। अब देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस और सहाबे किराम का कौल, जाहिर सी बात है कि दोनों के दर्जे तो हम देख ही रहे हैं कि दोनों का मकाम अलग अलग है। अल्लाह के नबी के मक्के मकाम का क्या कहना, सहाबे किराम का मकाम बहुत ऊंचा है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो हैसियत है वो तो जाहिर है कि किसी गैर नबी की हो ही नहीं सकती है, खुद किसी नबी की नहीं हो सकती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सहाबे किराम के आसार का मकाम इतना ऊंचा था कि कभी कभी तो ये होता था कि ऐसा नहीं कहते थे कि भी अल्लाह के नबी की हदीस में ये बात आ गई है इसे मान लो और सहाबी रसूल के असर में ये बात आई है इसे छोड़ दो, ऐसा नहीं करते थे। कभी कभी दोनों को इकट्ठा रख के तत्बीक की शक्ल निकालते थे। तत्बीक की शक्ल समझ रहे हैं ना, यानी दोनों बातों को सामने रख करके ऐसी उसका माना ऐसे समझना कि दोनों में टकराव खत्म हो जाए, दोनों में तारुज खत्म हो जाए। तो आप समझिए कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के यहां सहाबे किराम के आसार का मकाम कितना ऊंचा था कि वो हदीस रसूल के मुकाबले में अगर हदीस को देखते थे, सहाबे किराम के असर को देखते थे तो बाकायदा दोनों के दरमियान तत्बीक की शक्ल निकालते थे ताकि अल्लाह के नबी की हदीस में और सहाबे किराम के कौल में कुछ टकराव बाकी ना बचे। जैसे हम हदीसों में कभी कभी दो बातें अलग अलग लगती है हमको तो हम उसमें तत्बीक की शक्ल निकालते हैं, मुहद्दिसीन निकालते हैं, ऐसे ही वो बाकायदा हदीस रसूल में और सहाबे किराम के आसार में भी तत्बीक की शक्ल निकालते थे। इससे अंदाजा लगाइए कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सहाबे किराम के अखबार और आसार का मकाम कितना ऊंचा था। ऐसा ऐसा क्यों करते थे? इसलिए करते थे क्योंकि सहाबे किराम के असर का मकाम बड़ा ऊंचा है उनके यहां। वो ये नहीं चाहते थे कि एक पर अमल हो दूसरे पर अमल ना हो, हदीस पर अमल हो जाए और सहाबे किराम का जो अल्लाह के नबी से ही सुनने वाले लोग हैं, अल्लाह के नबी के सामने उठने बैठने वाले लोग हैं, सफर में हदर में आपके साथ रहने वाले हैं, उनका कोई कौल आ रहा है और वो कुछ अलग लग रहा है तो ऐसा ना हो जाए कि एक पर अमल किया जाए दूसरे को छोड़ दिया जाए, बल्कि तत्बीक की शक्ल यानी आपस में इत्तिफाक पैदा करने की शक्ल निकल जाए जिससे दोनों पर अमल हो सके, एक पर अमल हो जाए दूसरे को छोड़ने की नौबत ना आए। यहां तक इमाम अहमद बिन हंबल कोशिश किया करते थे। यह बात मुख्तसर तौर पर हो गई इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में। उसके बाद पेश करते हैं इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ क्या है। ये सारी बातें क्यों आपके सामने आ रही हैं? क्योंकि हजरात साहबे किराम के आसार को हुज्जत मानना है कि नहीं मानना है, दलील मानना है कि नहीं मानना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। इसलिए इस मसले को समझने के लिए हमें चोटी के अइम्मा और मुहद्दिसीन के मौक़िफ़ को और उनके स्टैंड को सामने लाना समझना जरूरी है। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह इनका क्या मौक़िफ़ है साहबे किराम के अक़वाल आसार के बारे में? कहते हैं ये भी सहाबे किराम के बारे में उसी मौक़िफ़ पर है जो मौक़िफ़ इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का है। लेकिन कैसे?
एकदम इमाम अहमद बिन हंबल की तरह नहीं, बल्कि मुतलक तौर पर जनरली का मतलब क्या है, यानी साहबे किराम की बातों को हुज्जत माना जाएगा, उनके अक़वाल से दलील पकड़ी जाएगी। इमाम अहमद बिन हंबल का क्या था, मजीद और आगे था ना, वो इतना अहमियत देते हैं साहबे किराम के अक़वाल को कि उसे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे में समझते हैं। समझ रहे हैं ना? तो दर्जे में तो इमाम शाफी नहीं समझते हैं, लेकिन मुतलक तौर पर जैसे वो हुज्जत मानते हैं ऐसे ये भी हुज्जत मानते हैं, दलील मानते हैं। हुज्जत का मतलब उर्दू वाला हुज्जत नहीं, अरबी में हुज्जत का मतलब जिससे दलील पकड़ा जाए, जिससे मोतबर माना जाए, जिससे हलाल और हराम साबित किया जाए, ये माना है उसका हुज्जत पकड़ने का, यानी दलील पकड़ने का, उसको दलील मानने का। अच्छा, दलील क्या है इसकी? अच्छा, इसी तरह से और एक बात और भी है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक बात यह भी है कि जब कुरान की कोई आयत हमारे सामने होगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कोई हदीस हमारे सामने होगी, तो सहाबे किराम के अक़वाल को हुज्जत नहीं मानते। जब कुरान और सुन्नत की कोई दलील सामने न हो, तब सहाबे किराम के कौल को हुज्जत वो मानते हैं। ठीक है। इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में क्या आया हुआ है, उनके पास अगर कोई कुरान और सुन्नत की दलील भी होती है, खासतौर पर सुन्नत की दलील होती है, और सहाबे किराम का कोई असर सामने आता है, तो उसे सहाबे किराम के असर को छोड़ते नहीं है, बल्कि दोनों में तदबीक की शक्ल निकाल करके इत्तिफाक पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि इस पर अमल हो जाए और ये छूट जाए। और यकीनन सहाबे किराम का मकाम उम्मत पे ऐसा ही है, ऐसा इतनी आसानी से हम सहाबे किराम को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सकते, जैसे इतनी आसानी से लोग नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वही दीन का सोर्स है, दीन के हम तक पहुंचाने का सबसे बड़ा सबब और जरिया है। कुरान उतरा, सुन्नत आई, लेकिन कुरान और सुन्नत को हम तक पहुंचाने वाला कौन है? बीच में जो कोऑर्डिनेट करने वाला तबका है वो हजरात सहाबे किराम का तबका है, वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उम्मत के लोगों के बीच में राब्ता कैसे होगा, कैसे कांटेक्ट होगा, कैसे ताल्लुक होगा? सहाबे किराम ही है बाद के लोगों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा से जोड़ने वाले। सहाबा को अगर हमने बीच से निकाल दिया तो पूरी उम्मत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कट जाएगी। अच्छा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बातें भी हम पढ़ लेते हैं। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल मदखल इला सुनन अल कुबरा के अंदर सही सनद के साथ इमाम शाफी से ये बात नकल की है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मा कान अल किताबु अव सुन्नतु मौजूदैन फल उज़्रु अला मन समिअहुमा मक़तूअन इल्ला बित्तिबाइहिमा फ़इन लम यकुन ज़ालिका सिरना इला अक़ाविली अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ अहदिहिम औ वाहिदिहिम। कहते हैं इमाम शाफी की बात का जो माना है वो क्या है, कहते हैं कि जब तक किताब मौजूद है, सुन्नत मौजूद है, यानी कुरान की दलील मौजूद है और हदीस की दलील मौजूद है, कुरान और सुन्नत की दलील जब तक मौजूद है, कहते तब तक किसी आदमी को माजूर नहीं माना जा सकता है जब तक कि वो कुरान और सुन्नत की इत्तिबा न करे। कुरान और सुन्नत मौजूद है तो किसी भी सूरत में कोई आदमी माजूर हो ही नहीं सकता है जब तक कि किताब और सुन्नत की पैरवी ना कर ले। ठीक है, किताब और सुन्नत सामने है तो किताब और सुन्नत की पैरवी करनी है। फ़इन लम यकुन ज़ालिक, हां, अगर हमारे सामने कुरान करीम की कोई आयत नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कोई हदीस नहीं है, तब हम कहां जाएंगे? कहते हैं सिरना इला अक़ाविली अस्हाबिन नबी, तब हम जाएंगे सहाबे किराम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम के अक़वाल की तरफ, या सहाबे किराम में से किसी एक सहाबी के कौल की तरफ जाएंगे। यानी क्या माना निकला? वही जो आपके सामने जिक्र किया गया था कि इमाम शाफी का मौक़िफ़ क्या है, सहाबे किराम की बातें हुज्जत हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत के होते हुए हम नहीं देखेंगे, उसको समझने के लिए देर जरूर देखेंगे कि कैसे समझा है, लेकिन किसी मसले में कुरान और सुन्नत की आयत हदीस नहीं है, लेकिन उस जगह पर सहाबे किराम का कोई स्टैंड मौजूद है, तो कहते हैं हम क्या करेंगे? हम नहीं देखेंगे, हम कुरान और सुन्नत को ही देखेंगे। कुरान और सुन्नत पे नहीं होगा तभी हम उसके आगे बढ़ेंगे और सहाबे किराम को अक़वाल को देखेंगे। तो खुलासे कलाम बहरहाल फिर भी क्या है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी वैसे ही सहाबे किराम के अक़वाल को हुज्जत मानते हैं जैसे मानना चाहिए, यानी उनको नजरअंदाज नहीं करते, बिल्कुल सहाबे किराम के अक़वाल हुज्जत हैं। तीसरा मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, और ये अमानतदारी है। ये क्या है? ये सलफियत की अमानतदारी है, और सलफियों से ज्यादा, अहले हदीसों से ज्यादा दुनिया में पूरी तारीख में कोई अमानतदार भी नहीं है।
मैं ये इल्मी अमानत की बात कर रहा हूं यहां पर फिलहाल। इल्मी अमानत का मतलब ये होता है कि हम किसी मसले में जब गुफ्तगू करते हैं, किसी मसले पर डिस्कशन करते हैं, तो हम किसी बड़े इमाम को नजरअंदाज नहीं करते किसी तासुब की बुनियाद पर, बल्कि हम बहैसियत आलिम, बहैसियत इमाम, बहैसियत फकीह, बहैसियत उम्मत के मुज्तहिद, हम तमाम उलमा से इस्तिफादा करते हैं, उनके इल्म से रुजू करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल का जिक्र आया, इमाम शाफी का जिक्र आया, इमाम अबू हनीफा का भी जिक्र आया, आगे इमाम मालिक का भी जिक्र आएगा। चूंकि उम्मत के अंदर इन 4 अइम्मा का नाम बहुत ज्यादा मुस्तफाद है, यानी मशहूर है और बहुत ज्यादा चर्चा है। पूरी दुनिया के लोग अइम्मे अरबा को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके नाम अकीदत से लेते हैं। और बहुत बड़ी तादाद तो उनके मुकल्लिदीन की भी है, यानी उनके मसलक के मुकल्लिदीन की, उनकी बातों को मानने वाले सही मानों में अगर हो जाएं तो सब के सब सुन्नत की राह पर आ जाएंगे। जैसा कि मैं इससे पहले भी कहता रहा हूं कि अगर सारे के सारे मुकल्लिदीन अपने अपने इमामों की बातों को वाकई मान लें तो सब के सब सुन्नत की राह पर आ जाएंगे, क्योंकि किसी भी इमाम ने तकलीद करने का हुक्म नहीं दिया है, सारे इमामों ने सुन्नत पर चलने का हुक्म दिया है। और मुकल्लिदीन को चाहिए कि अपने इमामों की बात माने, अपने इमामों की तकलीद करें। अपने इमामों की तकलीद करेंगे यानी जो कुछ भी कहा है सब मानेंगे, तो उसमें यह भी आया हुआ है कि हदीस हमारा दीन है, हदीस हमारा मनहज है, हदीस हमारा मसलक है। हदीस सही हो तो वही हमारा मौकिफ है। मेरी बात को दीवार पे मार दो, ना इमाम फला की, ना इमाम फला की, ना इमाम फला की, किसी की भी तकलीद ना करो। जहां से उन्होंने मसाइल लिया है वहीं से तुम भी मसाइल लो। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि जो आदमी मेरे कौल के मुताबिक फतवा दे, उसके लिए मेरे कौल के मुताबिक फतवा देना हराम है, जब तक कि उसे यह ना पता हो कि मेरे फतवे की दलील क्या है। मैंने कह दिया है इस बुनियाद पे फतवा नहीं देना है आपको, मेरा फतवा आपको कोट नहीं करना है, जब तक कि आपको यह ना पता हो कि मैंने फतवा किस दलील की बुनियाद पे दिया है। ऐसा हो सकता है कि भाई कोई दलील उस टाइम पर नहीं थी सामने जिसकी बुनियाद पर फतवा दे दिया जाए, तो फतवा इज्तिहाद की बुनियाद पे दे दिया गया बगैर दलील के, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इमाम अबू हनीफा की दूसरी कितनी उनकी फरमूदात है, कितने अकवाल है कि जब भी कोई बात मेरी अल्लाह के नबी की सुन्नत से टकराए तो मेरी सुन्नत मेरी बात को दीवार पे मार देना, सुन्नत को गले लगा लेना। तो हमको उस मौके पर इमाम अबू हनीफा की उस बात पर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा मसला। इसीलिए बार बार ये बात जानने की है कि अगर सारे मुकल्लिदीन सचमुच अपने इमामों के मुकल्लिद हो जाएं तो सबके सब सुन्नत पर आ जाएंगे, सबके सब हदीसों पर आ जाएंगे, सबके सब उसी राह पर चलने लगेंगे जिस राह पर नबी के सहाबा ताबईन चलते रहे। अइम्मा का, इम्मे अरबा का मौकिफ मेरे भाइयों वही है, सुन्नत का मौकिफ है, हदीसों का मौकिफ है। ये कभी भी तकलीद की राह पर उम्मत को नहीं लगाए, इन सबों ने सुन्नत का रास्ता दिखाया है। अच्छा, तो ये हमारा इंसाफ है कि हम ये नहीं सोचते कि अबू हनीफा का नाम क्यों ले, इमाम मालिक का नाम क्यों ले, इमाम शाफी का नाम क्यों ले, इमाम अहमद बिन हंबल का नाम क्यों ले। कभी कभी लोग ताना भी देते हैं, कहते हैं भाई आप लोगों को तो हक नहीं पहुंचता इमामों का नाम लेना, क्योंकि आप लोग इमामों को नहीं मानते। तो हम इमामों को मानते हैं, लेकिन हम इमामों की अंधी तकलीद नहीं करते तुम्हारे कहने की तरह से। और तकलीद करना अलग चीज है, उनकी इमामत का, उनके इल्म का, उनके मकाम का, उनकी फकाहत का एतराफ करना, तस्लीम करना, यह अलग चीज है। आप अंधी तकलीद करने की बात कहते हैं, हम अंधी तकलीद किसी की जायज नहीं समझते। अबू बकर उमर की जायज नहीं समझते तो किसी अदना उम्मती की किसे हम जायज समझ सकते हैं? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान और सुन्नत में तकलीद की कोई एक भी दलील नहीं है। सारी दलीलें इत्तिबा की हैं, सारी दलीलें इक्तिदा की हैं, सारी दलीलें इताअत की हैं, सारी दलीलें नक्शे कदम पर, असर पर चलने की हैं। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेदलील भी अमल करो। कुरान सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, मेरे साहबे किराम की समझ को सामने रख करके समझना और उसके मुताबिक अमल करना। कभी नहीं कहा कि बेदलील फला कह देगा तो मान लेना, बेदलील फला कह दे तो मान लेना। अल्लाह के नबी ने कहीं नहीं फरमाया, इसलिए तकलीद दीन के अंदर नहीं है। दीन में तकलीद नहीं है, सही बात यही है दलाइल की रोशनी में कि दीन में तकलीद सिरे से नहीं है। और अभी तकलीद पर हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये ज़िम्नन बात आई। तकलीद का मुस्तकिल मौजू आगे आने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि सलफियत के 6 उसूल बयान किए जाएंगे। उन 6 उसूलों में से इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी उसूल के ज़िम्न में या मुस्तकिल तौर पर तकलीद का मौजू भी ज़ेर बहस आएगा। उस वक्त सारी बातें हम तफसील से पढ़ेंगे। तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ क्या है? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ भी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ही मौक़िफ़ है।
अब यहां तो इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा का मौकिफ दोनों का एक है। यानी इमाम शाफी कहते हैं साहबे किराम की बातें हुज्जत हैं, ऐसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी क्या कहते हैं, साहबे किराम की बातें, उनके अक़वाल क्या है, हुज्जत हैं, उनके अक़वाल हुज्जत हैं। एक जमाना मुझे याद आता है, तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं वाक़यात से, मिसालों से, हवालों से। हनफियत और शाफियत यानी अहनाफ और शवाफे में इतनी खतरनाक किस्म की जंगें हुई हैं, टकराव, लड़ाइयां हुई हैं, उसकी तारीख पढ़ करके आपको हंसी भी आएगी और आपको रोना भी आएगा, आपको मातम करने का जी चाहेगा कि ये क्या है, ये इतना टकराव, इतना इख्तिलाफ। और ये तो हम जानते ही हैं पहले से ही कि अहनाफ ने इमाम शाफी के खिलाफ हदीसें घड़ दी और शवाफे ने अबू हनीफा के खिलाफ हदीसें घड़ दी। हनाफ ने क्या कहा भाई, अहनाफ ने इमाम शाफी के बारे में कहा, सयकूनु फी उम्मती रजुलुन युकालु लहू मुहम्मद इब्न इदरीस हुवा अशद्दु अला उम्मती मिन इब्लीस। ये हदीस घड़ी हुई है, झूठी हदीस है, झूठी हदीस, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें कहा गया कि मेरी उम्मत में एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद बिन इदरीस है और वो उम्मत के लिए खतरनाक है इब्लीस से। इब्लीस से ज्यादा एक आदमी खतरनाक उम्मत में पैदा होगा जिसका नाम होगा मोहम्मद बिन इदरीस। ये मोहम्मद बिन इदरीस कौन है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। ये इमाम शाफी का नाम मोहम्मद, बाप का नाम इदरीस, तो मोहम्मद बिन इदरीस शाफी हैं। ऐसे अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्या है, नुअमान बिन साबित, नुअमान उनका नाम है, वालिद का नाम साबित है। साथ ही साथ क्या कर दिया, और मेरी उम्मत में एक शख्स और पैदा होगा, उसका नाम क्या होगा, अबू हनीफा, हुवा सिराजु हादिहिल उम्मा, वो इस उम्मत का चिराग होगा। तो अबू हनीफा उम्मत के चिराग होंगे और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उम्मत के लिए इब्लीस से भी ज्यादा खतरनाक होंगे, ये भी उसी की देन है। उसके अलावा सवाल करते थे लोग, भाई एक हनफी बच्ची, हनफी लड़की क्या शाफी लड़के शादी कर सकती है कि नहीं कर सकती, एक शाफी लड़का या शाफी लड़की हनफी लड़के या लड़की से निकाह कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो ऐसे मसाइल पर जवाब देते हुए क्या कहा मालूम आपको, कहा ऐसे तो नहीं कर सकती है, ऐसे तो एक शाफी एक हनफी में निकाह का रिश्ता नहीं हो सकता है। हां, अगर करने की कोई गुंजाइश निकल सकती है तो ऐसे ही निकल सकती है जैसे एक मुसलमान किसी यहूदिया या किसी मसीहिया से निकाह कर सकता है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है, व तामुकुम हिल्लुल लहुम, यहूदियों ईसाइयों के खाने तुम्हारे लिए हलाल है और ऐसे ही उनकी औरतों से निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल है। तो कहते हैं कि एक हनफी शाफी उसी सूरत में इकट्ठा हो सकते हैं जब ऐसा समझ करके निकाह कर लो कि भाई वो अहले किताब में से है, तो अहले किताब की खातून से मुसलमान मर्द निकाह कर सकता है। तो ऐसे ही अगर समझे तो कर सकते हैं, वरना असल तो ये कि हनफी शाफी में कभी निकाह, ये हालत थी। और बहुत लंबी तारीख है, मैं तो खाली आपके सामने इशारा कर रहा हूं, और ये सारी बातें इंशाल्लाह उस असल में मौजू के ज़िम्न में आपके सामने आएंगी। क्या कहा, इमाम शाफी के मसलक के, इमाम शाफी के मजहब के मुवाफिक है, थोड़े से फर्क के साथ। सहाबे किराम के अक़वाल मोतबर हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी जैसे इमाम शाफी के यहाँ मोतबर है। बस फर्क थोड़ा सा ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबे किराम के अक़वाल हमारे सामने जब आएंगे, कई अक़वाल आएंगे, इब्न मसूद ने ये कहा, इब्न अब्बास ने कहा, अबू बकर ने ये कहा, फला ने कहा, फला ने कहा, तो हम उन अक़वाल में से इंतिखाब करके दलील बनाएंगे, सेलेक्ट करके दलील बनाएंगे। इसमें भी कोई ऐब की बात नहीं है, अगर आम माने में समझा जाए तो कोई ऐब नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना भाई कि किसी मसले में साहबे किराम के इख्तिलाफ हो जाए, तो ऐसी सूरत में हमें दलीलों की रोशनी में करीब देख करके इंतिखाब तो करना ही पड़ेगा कि कौन सी बात किन साहबे किराम का कौल ज्यादा करीब तरीन है। तो इस माने में इसमें कोई एतराज नहीं है। अगर ऐसे में अगर इसमें कोई ऐसा मसला पेश आ जाए कि नहीं बाद साहबे किराम का इंतखाब कर लिया गया हो, बाद साहबे किराम का इंतखाब कर लिया गया हो कि ये साहबे किराम अगर कुछ कहेंगे तो मोतबर होगी बात और बकिया लोग कहेंगे तो मोतबर नहीं होगी, अगर ऐसी कोई बात अगर बना ली गई तब तो गलत है। तब क्या है, तब तो गलत है। और यहां पर भी मैं सिर्फ इशारा करके बात आगे बढ़ाता हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि इमाम अबू हनीफा के मसलक के बाज उलमा ने अपनी किताबों के अंदर बाकायदा ये बात लिखी है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि गैर फकीह हैं,
वो रिवायत तो बहुत करते हैं, लेकिन रिवायत में, हदीस में जो बात बयान की गई है उसको समझने का वो मलका उनके पास नहीं है जो और लोगों के पास है। इसलिए अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहां फकाहत यानी हदीसों की फिक्र, उसका इल्म और उसकी समझ जो होती है ना, वो उतनी नहीं है। इसलिए हम उनकी बात का एतबार नहीं करेंगे, या उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से और सहाबे किराम के बारे में करेंगे। तो अगर इस माने में अगर सहाबे किराम के इंतखाब करने की बात है कि हम फला को चॉइस करेंगे, फला को चॉइस करेंगे, तब तो ये मसला बहुत महल्ले नजर है। लेकिन अगर इस माने में नहीं है, आम माने में है कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर एक मसले में सहाबे किराम के अक़वाल मुख्तलिफ हो जाएं तो बिलाशुबा उसमें इंतखाब करना पड़ेगा कि कौन सा कौल दलीलों से करीब तरीन है, या कौन से कौल के सिलसिले में ज्यादा मोतबर राय है, किस किस की राय है ना। बहुत सारी तरजीहात के असबाब हो सामने आ जाएंगे आपके। तो ये बात अपने सामने आप रखें, और उसके बाद ये एक कौल उनका मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, जिससे पता चले कि सहाबे किराम के बारे में उनका मौक़िफ़ क्या था, और फिर बकिया बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले दर्स में आपके सामने पढ़ी जाएंगी। इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तारीख में, एक किताब है तारीख इब्न मईन, तारीख इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह, तो इस किताब के अंदर सही सनद के साथ आप देखिए मुहद्दिसीन का तरीका क्या था। यानी हदीसों को तो हम परखते ही हैं, मुहद्दिसीन परखते ही हैं उसकी सनद सही है कि ज़ईफ है। सहाबे किराम के अक़वाल सनद सही है कि ज़ईफ है, ताबईन के अक़वाल सनद सही है या ज़ईफ है। हत्ता कि इन अइम्मे किराम ने, मुहद्दिसीन ने जो बातें इमामों की नकल की हैं, इमामों की शागिर्दों की नकल की है, वो भी सनद के साथ नकल की है, और उन सनदों के बारे में भी फैसला करना होता है कि वो सनद सही है या सही। इसीलिए ये बात आई थी कि इमाम इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था, अल इस्नादु मिनद्दीन, सनद दीन का हिस्सा है। सनद क्या है? दीन का हिस्सा है। अगर सनद ना होती दीन इस्लाम के अंदर तो फिर तो जिसकी जो मर्जी होती वो अपनी मर्जी से कह देता और कह करके निकल जाता, उसे परखने और पकड़ने का भी कोई जरिया हमारे पास नहीं होता कि तूने ये बात कहां से कही है। लेकिन सनद दीन का हिस्सा है, और सनद है कि नहीं, ऐसे भी सनद, कुरान करीम भी सनद के साथ ही है। अल्लाह तबारक व तआला के पास जिब्रील अमीन अल्लाह के पास था लौहे महफूज में, वहां से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को मिला, वो लेकर के आए और कहां उतारा, कहां उतारा? आसमान दुनिया पर। आसमान दुनिया से रफ्ता रफ्ता अब ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिल पर उतरता रहा। 23 साल तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में कुरान करीम उतर गया। एक साथ में तो आसमान पर आ गया, लेकिन उसके बाद बस्ता बस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतरता रहा। साहबे किराम ने सब कुछ सुना, याद किया, लिखा, सारा मुसहफ हमारी आंखों के सामने है कि नहीं है। और उसके बाद साहबा, फिर ताबईन, फिर तबे ताबईन, फिर अइम्मा, फिर मुहद्दिसीन, कोई सिलसिला सनद का खाली है कहीं? कोई इनक़िता कहीं आपको दिखाई देता है? कोई इनक़िता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मोतबर कोई दीन आपको नहीं मिलेगा। बहरहाल, तो इसमें क्या है? इसमें यह है कि यहया बिन जरीस बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं सुफियान के पास मौजूद था। सुफियान बिन उयैना इनके पास में मौजूद था। उनके पास एक आदमी आया, फ़क़ाला, और आकर के वो कहने लगा, मा तनक़िमु अला अबी हनीफा, आपको अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ एतराज है क्या? उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या है मसला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का? कहते हैं कि उस आदमी ने कहा, समिअतुहु यक़ूल, मैंने उनको ये कहते हुए सुना है, आख़ुज़ू बि किताबिल्लाह। वो कहते हैं, कौन कहता है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आख़ुज़ू बि किताबिल्लाह, मैं अल्लाह की किताब लूंगा। यानी पहले क्या लूंगा? मैं कुरान करीम को लूंगा। फमा लम अजिद फसुन्नतु रसूलिल्लाह, और जो मुझे कुरान करीम में ना मिलेगा वो मैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लूंगा। उसके बाद कहते हैं, फ़इन लम अजिद फी किताबिल्लाहि वला सुन्नति रसूलिही, और अगर मुझे कोई मसला कुरान में न मिले, सुन्नत में न मिले अल्लाह के रसूल की, आख़ुज़ु बिक़ौलि अस्हाबिही, तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अक़वाल को लूंगा। आगे क्या? ये बात तो साबित होगा ना कि सहाबे किराम के अक़वाल उनके यहाँ हुज्जत हैं। इमाम शाफी भी कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के होते हुए सहाबे किराम के अक़वाल हम नहीं लेंगे। ये भी कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के होते हुए नहीं लेंगे। इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या फरमाया था? कुरान और सुन्नत के होते हुए भी उनके अक़वाल को हम सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि टकराव अगर कहीं है तो उसका इजाला किया जाए, ताकि पूरे तौर पर हम इत्तिहाद के साथ सारे मसाइल को समझ लें। आगे कहते हैं, आख़ुज़ु बिक़ौलि मन शिअतु मिनहुम व अदअु क़ौला मन शिअतु, मैं सहाबे किराम में से जिसका कौल चाहूंगा लूंगा और जिसका कौल चाहूंगा छोड़ दूंगा।
जिसका कौल चाहूंगा लूंगा और जिसका कौल चाहूंगा छोड़ दूंगा। वला अखरुजु मिन कौलिहिम इला कौलि गैरिहिम, लेकिन इतना जरूर है कि मैं उनके अक़वाल से निकलकर, सहाबे किराम के अक़वाल से निकलकर गैर सहाबा के अक़वाल की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, इन सहाबा के अक़वाल नहीं बल्कि इन सहाबा के अक़वाल को मैं लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सहाबे किराम के अक़वाल को छोड़ करके मैं ताबीन के अक़वाल की तरफ चले जाऊं। मिसाल के तौर पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो खुलासे कलाम क्या हुआ कि बहरहाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी सहाबे किराम के अक़वाल को हुज्जत मानते हैं और उससे इस्तिदलाल करते हैं। तो ये चंद बातें थी। आगे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी तज़किरा है और मजीद और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बात में बोल करके खत्म कर दूं ताकि अइम्मा अरबा का मसला खत्म हो जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मौक़िफ़ है, यही मौक़िफ़ है। और इस सिलसिले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही कि सहाबे किराम की बात हुज्जत है, सहाबे किराम का कौल ये दलील है, इसके लिए उन्होंने एक दलील पेश की है। और कौन सी दलील है? वो सबसे बुनियादी दलील है। वो दलील है वस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सबसे पहले एकदम शुरू में इस्लाम लाने वाले मुहाजिरीन और अंसार, और जिन लोगों ने उनकी एहसान के साथ यानी इखलास और भलाई के साथ पैरवी की है, अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं, उनके नीचे नहरें जारी होंगी और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने साबिकीन, अव्वलीन, मुहाजिरीन और अंसार का जिक्र फरमाया है, तो भला अंसार और मुहाजिरीन को हम छोड़ करके किस चीज को हुज्जत मानेंगे? जब कुरान कहता है कि अंसार और मुहाजिरीन, साबिकीन और अव्वलीन, यानी क्या मतलब? पहले अंसार और मुहाजिरीन, ये सहाबे किराम ही तो है। अंसार मुहाजिरीन और कौन है? तो वो इस आयत करीमा को पढ़ करके दलील पेश करते हैं कि इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अंसार और मुहाजिरीन, साबिकीन अव्वलीन की पैरवी करनी है। अल्लाह ने इनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है, इनका मकाम इतना ऊंचा है, अल्लाह इनसे राजी हो चुका है, अल्लाह से राजी हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि सहाबे किराम हुज्जत है, सहाबे किराम के अक़वाल हुज्जत है। तो ये अइम्मे अरबा रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन के आपके सामने अक़वाल फरमुदात आ गए हैं। बकिया जो इसके, अब ये तो एक स्टैंड था ना, एक मौक़िफ़ था, सहाबे किराम का कौल हुज्जत है। इसके बाद अगला जो मौक़िफ़ है जो हुज्जत नहीं है, उनकी क्या दलील है, क्यों ऐसी बात वो बोलते हैं, वो बात आपके सामने आएगी। और फिर उसके बाद अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ आएगा कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह भी इन अइम्मे किराम ही की तरह से सहाबे किराम के कौल को हुज्जत मानते रहे हैं और इसी को अपनी किताबों में हर जगह उसको आप लिखते रहे हैं, बताते रहे हैं, नसीहत करते रहे हैं। और हर प्लेटफार्म से जो भी उनका मैदान था लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, हर मैदान से अल्हम्दुलिल्लाह वो इस मौक़िफ़ को उम्मत के सामने रखते रहे हैं। इसलिए अगर कोई इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ भी कोई इस तरह की बात करता है तो वो भी बहरहाल इंसाफ पसंद नहीं है, और या तो वो हकीकत को नहीं जानता है, या अगर हकीकत को जानता है तो वो इंसाफ पसंद नहीं है, बल्कि वो तासुब के साथ गुफ्तगू करता है। ये बातें, चंद बातें थी आपके सामने, बकिया बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले दर्स में आपके सामने आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सहाबे किराम के मकाम और मर्तबे को समझने की तौफीक अता फरमाए, उनके अक़वाल फरमुदात और ऐसे ही उनके अफ़आल, उनके फतावे, ऐसे ही उनके इज्तिहादात और ऐसे ही उनके फैसले जो भी हैं, अक़दिया जिनको कहा जाता है, क़ज़ाया यानी फैसले, क्योंकि बहुत सारे सहाबे किराम अपने अपने वक्तों में काजी भी रहे हैं, तो उनके फैसले, इन तमाम चीजों को हमें अपने सामने रखना है और उसके बाद हमें दीन इस्लाम की सही समझ हासिल हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, मनहज को और उसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।